میں ایک 40 سالہ خاتون ہوں۔ میری زندگی اپنے 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ میری بیٹی جس کا نام شازیہ ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ میں نے اسے بڑے ناز و نام سے پالا ہے۔ اس کی ہر خوشی کے لیے میں نے اپنی جان تک قربان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شازیہ کی شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میں نے اپنے داماد عرفان کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اسلام اور دیور ناصر نے دیکھ لیں اور سب راضی ہو گئے۔ خیر، شازیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب وہ میکے آتی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ابتدائی چند مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ عرفان کا رویہ بدلنے لگا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید کوئی معمولی بات ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے میں نے عرفان کو گھر بلایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسلام بیمار تھے اور اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میرے بیٹے دفتر میں تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ جب عرفان آیا تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور سیدھا بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہارا رویہ شازیہ کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ عرفان نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے شازیہ سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے آپ پسند تھیں، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے شازیہ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب رہ سکوں۔ میں گمسم بیٹھی رہی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ عرفان نے بات آگے بڑھائی اور کہا، مجھے شازیہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے نہ ملیں تو یاد رکھیں، میرا اور شازیہ کا تعلق صرف نام کا رہ جائے گا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر وہ ہنس کر بولا، آپ ایک عورت بھی ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا، دوسری طرف یہ عجیب شرط۔ لیکن اس کی باتوں میں جو ضد اور ارادہ تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرا دماغ شازیہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو دکھا رہا تھا۔ عرفان کی دھمکی صاف تھی، اگر میں اس کی بات نہ مانی تو وہ شازیہ سے دور ہو جائے گا اور میرے گھر اور بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ شام ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں برسوں سے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام کی بیماری نے گھر کی رونق ختم کر دی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ عرفان کی بات پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن کہیں اندر ایک خلا بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا اور باورچی خانے میں جا کر شازیہ کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنا کہ سالن بناتے ہوئے وہ باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ عرفان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، خاص طور پر اس کی وہ بات کی، میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے بات نہیں کی۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو نہ صرف میرا بلکہ شازیہ کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مجھے اکیلے کرنا ہے۔ 3 دن بعد شام کے وقت میں نے خود عرفان کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔
मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अब फिक्र ना करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। मैंने फोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर पर लेटी रही। ज़हन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आते तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फ़ोन आया। इसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पकनक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूं, आप आ सकती हैं? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही शाजिया निकले, मुझे फ़ोन कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। सुबह से ही मैं अजीब कैफियत में थी। न किसी से ज़्यादा बातें की, न घर के मामूल के काम किए। जब शाजिया तैयार होकर पड़ोसियों के साथ निकल गई तो मैं इरफान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया। वो बोला, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएं। मैं नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूँ। घर से निकलते वक्त डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर में इरफान का घर आ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। वो कहने लगा, अंदर आ जाएं, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इरफान ने ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाज़ा खोला और कहा, यहाँ बैठें, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसने शरबत लाया जो मैंने आधे मिनट में ख़त्म कर दिया। इस वक्त मुझे बार बार अपनी वो बात याद आ रही थी कि ये सब सिर्फ एक बार होगा और मैं ये शाजिया की खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन इरफान की आंखों में जो इत्मीनान और फतह का एहसास था वो साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये फैसला जो मैंने शाजिया के लिए किया था अब हकीकत में बदलने जा रहा था। बेडरूम में हल्की रोशनी थी, खिड़की पर पर्दे थे और हवा में एक खुशबू थी। शायद इरफान ने खुसूसन ये माहौल बनाया था। वो मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये बस एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने वादा किया है और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दें। उसकी बात सुनकर मैंने नज़रें झुका लीं। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ ज़मीर का बोझ था, दूसरी तरफ शाजिया का मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून। इरफान मेरे करीब आया। इसका लहजा पहले से ज़्यादा नर्म और संजीदा था। वो कहने लगा, आप नहीं जानते, मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से ये ख्वाहिश थी, बस मौका न मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा कदम है? वो बोला, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लम्हा हमारे दरमियान हमेशा राज रहे। वो करीब बैठकर माहौल को मज़ीद नर्म कर रहा था। हल्की सी खुशबू, बंद कमरा और हमारे दरमियान खामोशी, ये सब मिलकर लम्हों को यादगार बना रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सब ना होता, अगर मैं इरफान को साफ इनकार कर देती, तो शायद शाजिया की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो खुश न रह पाती।
इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की माँ हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें न बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुरा कर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि ये फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। आज के दिन के बाद मेरी जिंदगी में जैसे एक नया रंग भर गया। मेरे चेहरे पर वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले गम हो गई थी। मैं पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गई। शाजिया ये सब महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि शायद माँ अब अपनी जिंदगी के बोझ से निकलकर हल्की हो गई है। इरफान और शाजिया भी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। इरफान अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने। हम दोनों एक दूसरे को एक खास अंदाज में समझने लगे थे। हमारे दरमियान एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात न थी। एक रोज शाम के वक्त में चाय पी रही थी जब इरफान आया। उसने सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी नजरें इस दिन कुछ संजीदा लग रही थीं। उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बल्कि बहुत बेहतर हूं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैंने जो वादा किया था उस पर कायम हूं। आप फिक्र न करें, शाजिया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, जो हुआ वो सिर्फ एक वादा नहीं था, ये मेरे लिए एक याद है, एक खुशबू की तरह जो अब मेरी सांसों में बस गई है। मेरा नाम फातिमा है। मेरी उम्र 20 साल है। कद 5 फुट 2 इंच है और मैं खुद को हमेशा खूबसूरत महसूस करती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह तरोताज़ा है। आंखों में एक खास सी मस्ती है। गाल भरे भरे और होंठ रसीले जैसे घूल दिए गए हों। ये सब कुछ हमेशा मेरे अर्द गिर्द लोगों की तौजा का मरकज रहा। लेकिन इस वक्त की बात ही कुछ और थी, जब मैं 16 साल की थी और मैट्रिक के इम्तिहान सर पर थे। इस उम्र में हर चीज़ एक अलग ही शिद्दत से महसूस होती है। मैं औसत थी, न बहुत कमज़ोर और न ही कोई गैर मामूली ज़हीन। इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे रहनुमाई की ज़रूरत थी।
मेरी खाला का बेटा तलहा, जो मैट्रिक कर चुका था, हमारे घर के करीब ही रहता था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, तलहा से कह दें कि वो मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। अम्मी ने फौरन इस बात को संजीदगी से लिया और उसी दिन तलहा से बात कराई। शाम को उन्होंने मुझे बताया, तलहा हर शाम 7 से 9 बजे तक तुम्हें पढ़ाने आएगा। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। घड़ी ने 7 बजाए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। तलहा अंदर आया। इसकी उम्र 21 साल के लगभग थी। 6 फुट के करीब कद, मजबूत जिस्म, साफ शियू और गोरा रंग। इसकी शख्सियत में एक अजीब सन एतमाद और कशिश थी। सलाम दुआ के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी। तलहा ने किताब उठाकर उसके वरक पलटे और फिर पूछा, किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मीठ और इंग्लिश में। मैं थोड़ा सकड़ कर बैठी थी, बात करते हुए झुझक रही थी। तलहा ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अगर इसी तरह घबराओगी तो जो कुछ पढ़ाऊंगा वो याद नहीं रहेगा। डरने या झिझकने की जरूरत नहीं। हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे। जो सीखोगी वो याद भी रहेगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी बेहतर। इस दिन पढ़ाई तो खास ना हुई, लेकिन तलहा ने अपनी बातों और हंसी मजाक से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं भी अब काफी प्रायतमाद महसूस कर रही थी और उसके चटकले का जवाब भी भरपूर अंदाज में दे रही थी। मेरा चंचलपन जाग उठा था। तलहा ने थोड़ी सी मीत की मशक करवाई और कहा कि कल से इंग्लिश शुरू करेंगे। जब वो जाने लगा तो उम्मी ने उसे चाय के लिए रोक लिया। चाय और मुख्तसर सी गुपशुप के बाद उसने कहा, कल शाम 7 बजे आऊंगा, तैयार रहना। अगले 2 हफ्ते इसी तरह गुजरे। तलहा वक्त का बहुत पाबंद था। हमेशा वक्त पर आता और वक्त पर ही चला जाता। उसकी शख्सियत में एक जाज़िबियत थी। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लाजवाब था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी गर्विदा होती गई और उससे मेरी दोस्ती भी बढ़ती गई। इसके साथ गुजरने वाले लम्हात मेरे लिए खास और यादगार बन गए थे। एक दिन तलहा मुझे मीत की मुश्क करवा रहे थे कि अम्मी चाय ले आएं। उन्होंने चाय मेज पर रखते हुए कहा, चाय पहले पी लेना, और वापस किचन में चली गईं। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर तलहा को देना चाही, लेकिन जाने क्यों मेरा हाथ कांप गया और पूरी चाय तलहा के ऊपर गिर गई। उसकी पतलौन और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं घबराकर दौड़ती हुई तौलिया उठा लाई और बार बार सूरी कहती हुई उसकी शर्ट को तौलिए से साफ करने की कोशिश करने लगी। आप जले तो नहीं? मैंने तौलिया रगड़ते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा। तलहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला दोगी तौलिया रगड़ रगड़ कर। मैं उसके इस जुमले को समझ न सकी और उसी तरह तौलिए से उसकी शर्ट साफ करने में लगी रही। शायद मैं कुछ देर और ये सब करती रहती, लेकिन तलहा ने आहिस्ता ही से मेरे दोनों कुंधों को थाम कर मुझे खड़ा किया और कहा, बस करो बबली, सब कुछ ठीक है। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। उसकी शफकत और नरमी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब तलहा ने मुझे रोते देखा तो उसने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अरे पागल, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर थोड़ी चाय गिराई है। ये तो हादसाती तौर पर हुआ। इसके उस अंदाज पर मुझे हिम्मत मुली। मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसा भी तो किसी न किसी गलती का नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती मेरी ही थी। तलहा ने माहौल को हल्का फल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, बबली, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम ऐसे हादसे रोज क्या करो। इसकी मासूमाना हंसी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन उसे हंसते देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। तलहा ने कहा, चलो
वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां हादिसा हुआ था। ये कहते हुए उसने मुझसे कहा, जाओ अपनी जगह पर बैठो। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की, मगर तलहा ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूं, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। तलहा अपनी किस हालत की बात कर रहे थे, ये मैं उस वक्त समझ न सकी। इस दिन जब मैं रात को बस्तर पर लेटी तो ये वाक़या बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। इस वक्त तो सब कुछ मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन अब इन लम्हात को याद करना थोड़ा डरावना लग रहा था। मुझे पता ही न चला कि कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। इस रात मैंने ख्वाब में बार बार तलहा को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में बेंच पर बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों और सहराओं में घूम रहे होते और कभी समंदर की लहरों से खेल रहे होते। इस रात मैंने और तलहा ने मिलकर ख्वाबों में पूरी दुनिया की सैर की। सुबह जब आंख खुली तो ख्वाब के सारे मनाजिर मेरे जहन में नक्श थे। मैं बस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहती थी। मुझे इल्म ही नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत परलत्फ था। दूसरी शाम जब तलहा हमारे घर पहुंचे, मैं अभी नहाकर निकली थी। मेरे बाल अभी गीली थे और उनसे पानी गिरता हुआ महसूस हो रहा था। तलहा तब तक अंदर आ गया था। मैं तो तलहा को अपने ख्वाबों में पहले ही बसा चुकी थी, लेकिन इस शाम मुझे लगा जैसे तलहा के दिल में भी अब कुछ खास चल रहा है। दरअसल सटड़ी के दौरान मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है, मगर इतना ज़रूर था कि तलहा की मौजूदगी मुझे मखमूर कर रही थी। ये एहसासात मेरे लिए बिल्कुल नए थे। एक अनोखा सा सुरूर था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब तलहा मुझे मीत के एक सवाल की मश्क करवा रहे थे तो हम उठे बैठे हुए थे। ये सब कुछ इत्तिफाकन हुआ, मेरा कोई इरादा न था। 9-11 बजे तलहा जब जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेटने लगी। तलहा बोला, बबली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उस लम्हे तक वो मुझसे दूर जा चुके थे। उसके ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद वाकई ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। मैं भी सारी रात इसी ख्याल में रही और ख़ुद को बहुत ख़ास महसूस करती रही। अगले दिन भी तलहा वक्त पर आ गए। अभी हमारी सट्टी शुरू हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला लाऊं, मगर तलहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बैठ जाओ। हमने कौन सा मोतियों की माला परोनी है, ऐसे ही बैठकर पढ़ो, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर इधर की बातें करने लगे। तलहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़े रखा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। एक तरफ उसकी मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था, दूसरी तरफ एक अनजान सी झिझक और खौफ था जो मुझे रोक रहा था। कमरे में अंधेरा था। हम एक दूसरे के चेहरों के तासरात नहीं देख सके थे। हकीकत ये है कि तलहा ने हाथ मेरा पकड़ा था और मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं फौरन अपना हाथ छुड़ा लेती। तलहा के लिए मगर मैं पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी में मैंने तलहा का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। जैसे ही मैं उठकर चलने लगी, अचानक मेरे कदम डगमगा गए। इस लम्हे तलहा ने फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। वहां जाकर मैंने ठंडे पानी से मुन्ना पर छींटे मारे ताकि दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो सके। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बिजली वापस आ गई। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो तलहा वहां नहीं थे। मुझे एक पल के लिए परेशानी हुई कि वो बगैर बताए कैसे चले गए। इसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आए और बताया, तलहा कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने खामोशी से किताबें समेटीं और अपने कमरे में आ गई। मेरी सोचों का महवर बस तलहा ही थे। उन्हें ख्यालात में खोई रही और सुबह तक तलहा की याद में मसहूर रही।
शाम होने से पहले ही मैं बेचैनी से वक्त के गुजरने का इंतजार करने लगी। दिल में एक अनजानी सी तड़प थी। बस ये जानना चाहती थी कि आज तलहा कैसे बर्ताव करेंगे, लेकिन वक्त मुकर्रा पर भी वो नहीं आए। मैं हर लम्हा दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। जब 8 बज गए और तलहा न आए तो मैंने उम्मी से कहा, खैर है, तलहा आज क्यों नहीं आया? उम्मी ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने हल्की सी फिक्रमंदी से कहा, अम्मी, कल जब वो गए थे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या पता अभी तक ठीक न हुई हो। अब खाला को फ़ोन करके उसका हाल तो पूछें। अम्मी को भी जैसे कुछ याद आया। फौरन खाला को फ़ोन मल्लाया। खाला ने बताया कि तलहा तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी बेकरारी दौड़ गई। दिल चाहा कि अभी जाकर उसका बुखार अपनी जान पर ले लूं, लेकिन मैं बेबस थी। सुबह मैं उम्मी के साथ खाला के घर गई। वहां जाकर देखा तो वाकई तलहा बुखार में तपते हुए बस्तर पर लेटे थे। रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और उम्मी अपनी बातों में मगन हो गईं। तलहा ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आंखें मूंद लें। इन सब की मौजूदगी में हम कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी छा गई। बातों बातों में खाला ने बताया कि इसकी सहेली की बेटी की शादी है और उसे वहां जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जा नहीं सकती। उम्मी ने पूछा, क्यों नहीं जा सकती? खाला ने जवाब दिया, जिसके साथ जाना था वो तो बस्तर पर पड़ा है और खालू भी आफत से छुट्टी नहीं ले सके। अम्मी, जो कि खाला की सहेली को जानती थीं, बोले, तुम्हारी सहेली कौन से दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर उम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे तलहा से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने भी उम्मी की तायद में कहा, अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो ज़रूर जाएं। तलहा की फिक्र न करें, हम 2-3 घंटे उसकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और उम्मी दोनों को मैंने राज़ी कर लिया, हालांकि वो जाना नहीं चाहती थीं। उनके जाने के बाद मैं और तलहा घर में अकेले रह गए। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। तलहा आंखें मूंदे लेटे रहे, शायद वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। तन्हाई और खामोशी ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। अचानक तलहा ने मेरी तरफ करवट ली और आंखें खोल दी। फातिमा, तुमने मुझे जला डाला। उसकी आवाज़ मेरे दिल में उतर गई। उसकी नज़रें। उस वक्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। एक आम सा लड़का, मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ था। हमारा घर दिल्ली में था, जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारी दिल्ली के शुरू में मेरी अम्मी की पक्की सहेली रहती थी, जिन्हें हम खाला कहकर पुकारते थे। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, मगर हम लोग उन्हें बचपन से खाला कहकर पुकारते थे। खाला के 4 बच्चे थे। उनके शौहर बैरूने मुल्क काम कर रहे थे। वो हर साल 1 महीने के लिए आते थे और जाते हुए हमेशा अपनी बीवी को एक नया मेहमान तोहफे में दे जाते। नया मेहमान मतलब नया बच्चा। ये बात मोहल्ले में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी, मगर हकीकत यही थी कि उनकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। खाला की शख्सियत बहुत निराली थी। लंबे कद की, गोरी रंगत, चौड़ी आंखें और हमेशा खुशबू से महकती हुई। वो बात करती तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अक्सर मेरी अम्मी उन्हें हंसकर टोक देती, कहती, आहिस्ता बोलो, बच्चा सुन लेगा। तो खाला मुस्कुराकर जवाब देती, अरे बाजी, ये तो अभी बच्चा है, तुझे क्या समझ आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उस उम्र तक पहुंच चुका था जहां सुनकर दिल में हलचल पैदा हो रही थी। मैं अक्सर शाम को अपना होमवर्क उसी कमरे में करता था जहां अम्मी और खाला बातें करती थीं। खाला की बातें कभी कभार आम घरेलू मामलात से निकलकर जरा नाजुक मोड़ पर आ जाती। वो अपने शौहर के बारे में ऐसे जुमले कहती जिनमें हल्की मुस्कुराहट और शरारत छिपी होती। मैं खामोशी से अपनी किताब पर नजरें जमाए उनकी बातों को सुन रहा होता। इसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। उस लड़के का नाम यासिर था। पहले दिन से ही सर ने मुझसे मेरे साथ बिठा दिया। शुरू में तो हम दोनों के दरमियान तकराए, मगर चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा था और तजुर्बे में भी बहुत आगे था। वो मुझे अजीब बातें बताता और एक दिन हंसते हुए कहने लगा, यार ये सब बातें बढ़ने से नहीं आती, एक दिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।
मैं हंसकर रह गया, मगर उसके अल्फाज मेरे जहन में कहीं ना कहीं उतर चुके थे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक हलचल पैदा हुई। गली के कोने वाले घर में चोरी हुई। सब लोग दहशतजदा थे। इसी शाम खाला हमारे घर आईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अम्मी से कहा, बाजी, आज दिल बहुत डर रहा है। देवर देवरानी इस्लामाबाद गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे भी उनके साथ हैं। घर पर बस मैं हूं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी 3 और 2 साल के हैं। अगर आज रात चोर आ गया तो मैं तो डर के मारे आवाज भी निकाल नहीं सकूंगी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो खुद अभी बच्चा है, ये तेरी क्या हिफाजत करेगा। खाला फौरन बोल पड़ी, बाजी, अब ये बच्चा थोड़ी है, ये तो जवान हो चुका, इसकी तो दाढ़ी के बाल भी आने लगे। कम से कम अगर कोई आ भी गया तो ये शोर मचा के सबको बुला लेगा। अम्मी ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, ठीक है बेटा, आज रात तुम खाला के घर जाके सो जाना। उन्हें हिम्मत देना, डरने ना देना। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है। खाला फौरन खुश हुई, कहने लगी, तो फिर अभी चलते हैं। मैंने जल्दी से अपना नाइट सूट और कुछ किताबें उठा लीं। खाला ने अम्मी से कहा, कल सुबह ये मेरे घर से स्कूल चला जाएगा। कहा, परेशान ना होना। खाला के घर में पहले भी सैकड़ों बार आना जाना हुआ था, लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अलग था। घर में सन्नाटा था। बड़े बेटे नहीं थे, देवर देवरानी भी नहीं, सिर्फ खाला और उनके 2 छोटे बच्चे थे। बावर्ची खाने से खुशबू आ रही थी। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले आई। बेड पर एक तरफ बच्चों के लिए जगह बनाई और दूसरी तरफ मेरा तकिया और चादर रख दी। मुस्कुराकर खाला कहने लगी, आज तुम मेरे साथ सो जाना, मुझे डर नहीं लगेगा। हम बावर्ची खाने में गए। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं कमरे में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खाला बावर्ची खाने में काम करने लगी। कुछ देर के बाद वो दूध के 2 फीडर भरकर बच्चों को देने आई, ताकि बच्चे पीकर सो जाएं। उस वक्त टीवी आम घरों में कम था, मगर खाला के घर में टीवी मौजूद था। मैंने टीवी ऑन कर लिया। टीवी पर ड्रामा चल रहा था। हम चारों मिलकर ड्रामा देखने लगे। खबरें शुरू हुई तो खाला ने कहा, चुन्नू, अब सोने चलते हैं। मैं बेड पर आया तो खाला ने कहा, कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करो, कुंडी भी लगा दो। मैंने कहा, गर्मी बहुत हो जाएगी, मगर वो ना मानी और खुद उठकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके उसे कुंडी लगा दी। हम अभी लेटे ही थे कि बाहर से कोई हल्की आहट सुनाई दी। खाला फौरन मेरे करीब आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ। पहले तो वो डर गई, फिर कहने लगी, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर चलने लगी। दूसरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर निकले तो देखा कि सामने एक बिल्ली बैठी है, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। वापस आकर खाला कुछ रिलैक्स हुई, लेकिन कमरे में बहुत गर्मी थी। मैंने मजाक में कहा, मैं तो कपड़े हल्के करके सोने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराकर कहने लगी, तुम एक चादर ले आओ, धोती बनाकर पहन लो। खाला के कहने पर मैंने चादर को वैसे ही लपेट लिया। खाला कहने लगी, मैं जरा नहा कर आती हूँ, पसीना बहुत आ रहा है। खाला नहाकर वापस आई तो बच्चे सो चुके थे। अब कमरे में एक अजीब खामोशी थी और कहानी का असल मोड़ शुरू होने वाला था। खाला नहाकर आई तो उनके बाल भीगे हुए थे। खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। उन्होंने आते ही बच्चों को जरा संभाला, कंबल दुरुस्त किया और मेरी करीब आकर बोली, बेटा जरा साइड पर हो जाओ, बीच में जगह बना दो। मैं बच्चों के बीच में नहीं लेटना चाहती, बच्चे रात को बहुत तंग करते हैं। मैं थोड़ा साइड पर हुआ और खाला मेरे और बच्चों के दरमियान में लेट गई। कमरे की रोशनी अभी जल रही थी। खाला ने आहिस्ता से कहा, रोशनी बंद मत करना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, तू तो बड़ी बहादुर है, फिर ये डर कैसा? मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बहादुर तो हूं, लेकिन चोरी का वाकया हो जाए तो औरत का दिल घबरा जाता है। मैं उनकी तरफ करवट लिए हुए था। पसीने और नहाने के बाद की नरमी ने कमरे के माहौल को और भी अजीब कर दिया था। वो अपनी चादर जरा संभाल कर लेती, मगर कमर के पास से चादर थोड़ी सी हट गई थी। मैं नजरें बचाकर कभी दीवार देखता, कभी पंखे को देखता, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज थी। खाला ने मेरी तरफ देखा, कहने लगी, क्या सोच रहे हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर खालू यहाँ होते तो आपको ये डर नहीं लगता? खाला मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, और अगर होते तो मुझे यूं किसी को बुलाना ना पड़ता। कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज थी। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आपको डर लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। खाला थोड़ी देर मुझे देखती रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, हाथ पकड़ने से डर कम नहीं होता, लेकिन कभी कभार बात इससे आगे भी बढ़ जाती है। खाला की बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैंने कहा,
کیسی بات؟ خالہ نے نظریں جھکا کر کہا، تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے فوراً کہا، خالہ میں بچہ نہیں ہوں۔ خالہ ہلکی سی مسکرانے لگی، جیسے میرے دعوے پر خوش بھی ہوئیں اور حیران بھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت باہر سے ہلکی آواز آئی۔ خالہ فوراً اٹھی اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، رکیے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ خالہ کہنے لگی، نہیں، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم دونوں دروازے تک گئے، آہستہ سے کنڈی کھولی، باہر دیکھا تو باہر ہوا چل رہی تھی، شاید کسی کے گھر کا دروازہ ہوا سے بج رہا تھا۔ خالہ نے گہری سانس لی اور ہم واپس آ گئے۔ کمرے میں آ کر خالہ کہنے لگی، بس بیٹا، میں آج تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں، میں بیچ میں نہیں سو سکتی، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے چادر ذرا سا اوپر کیا، خالہ میرے قریب آ کر لیٹ گئیں۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب خالو آتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہو نا؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں نے کہا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد؟ خالہ آہستہ سے بولی، پھر میرا دل خالی ہو جاتا ہے۔ میں خالہ کی بات سن کر خاموش رہا، لیکن میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج کافی سنجیدہ تھا۔ خالہ نے اچانک کہا، بیٹی تم بڑے ہو کر کس قسم کی بیوی کو پسند کرو گے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، پتہ نہیں، کبھی سوچا نہیں ہے۔ خالہ ہلکا سا مسکرانے لگی، کہنے لگی، ایسی جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں وقت دے، ایسی جو صرف رسمی طور پر بیوی ہو؟ میں نے کہا، ایسی جو میرا خیال رکھے، مجھے وقت دے اور مجھ سے دور کبھی نہ ہو۔ خالہ ایک پل کو خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، پھر تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا، ہر طرح سے۔ خالہ کے الفاظ میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی کم نہیں ہو رہی تھی۔ باہر سے کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سکون تھا۔ شاید یہ سکون اس اعتماد کا تھا جو خالہ کو میرے ہونے سے مل رہا تھا، یا پھر وہ خاموشی جو کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ خالہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کا لمس کتنا نرم تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا، کبھی کبھار کچھ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ خالہ کا یہ جملہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ کچھ رشتے احساس سے چلتے ہیں۔ اس ایک جملے نے ماحول میں ایک الگ گرمی پیدا کر دی تھی۔ میں چپ چاپ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں آدھی بند تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ خالہ نے ہلکی سی انگڑائی لے کر کہا، بیٹے تم تھک تو نہیں گئے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں خالہ، بالکل نہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ہے، کیونکہ آج مجھے نیند فوراً نہیں آنے والی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ خالہ نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، ہاں، لیکن ایسی باتیں کریں گے جو کسی اور کو سنانی نہ پڑے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر اب شروع کریں۔ خالہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ انسان کو صرف کھانے پینے یا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے سکون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سکون کسی قریبی کے لمس، توجہ اور خیال رکھنے سے آتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن الفاظ کے پیچھے ایک تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ، کیا آپ کو بھی کبھی ایسا لگا کہ آپ اکیلی ہیں؟ وہ مسکرانے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی، کہنے لگی، ہاں بیٹا، بہت بار، جب خالو یہاں نہیں ہوتے تو گھر بڑا ہونے کے باوجود ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم تو آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید ماحول